what we are going to discuss today. Yesterday, we discussed about the GUI application that we discussed how we are going to just include some types of application forms, types of application in our web page. There, I have discussed about form tag. Form tag हमारा कैसे work करता है. Then there was an attribute of that form tag that was action, right? That was the attribute action की जब हमारा ये form complete हो जाता है तो after submission where we will be redirected. So there was an attribute called action, right? Apart from that, we discuss about label, we discuss about input type, we discuss about text boxes, then we discuss about list, where group of different options was available to the user and user has to select one, right? So this was yes, and then we discuss about the data list. Okay, we discuss about data list which contain the option tag for there was multiple selection option in the checkbox option. हमने checkbox को discuss किया था जिसमें multiple selections का हमने option दिया था. I've given you so many examples like hobbies था, right? So today we will be moving ahead with the some more tags of that फॉर्म. उस फॉर्म्स के अंदर और भी क्या क्या चीज़ को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. So, उसी चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए वी विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड टुडे. जस्ट लेट मी शेयर दिस. So today we are going to cover about the text area, about the multiple options. Like जैसे अभी हम लोग text box में सिर्फ एक line की data entry कर पा रहे थे, right? If we have to write certain paragraphs, or suppose you are giving some feedback to any website, तो हो सकता है 2-3 line का आपका feedback होगा, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे include करेंगे? That we will be discussing in the text area. Then today we are going to discuss about field set, listen, and 2 or 3 sample of login form, simple registration form I will be sharing to you today, so that you can include these in your project also. So most probably whatever topics we are going to cover today, that much topic will be it should be there in your project. इतना तक आप प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे. कल मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह पे काम करना बताऊंगी जो कि आपके प्रोजेक्ट से हटके रहेगा. उसको आपको प्रोजेक्ट से मतलब दैट इज समथिंग कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज अ टेम्पलेट एंड कैसे हम लोग किसी टेम्पलेट को एडिटिंग करेंगे, राइट? तो कल की जो टॉपिक होगी उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करना. आप कोशिश करना कि आज तक जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इफ वी विल एबल टू कंप्लीट ऑल दिस. सो टिल टुडे यू हैव टू इंक्लूड द कंसेप्ट इन योर वेब पे, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कल क्या है, कल एक्स्ट्रा ऐसा क्या हो जाएगा जिसको हमको इंक्लूड करना पड़ जाएगा. तो आप एकदम रिलैक्स रहेंगे. वॉट एवर वी आर गोइंग टू कवर टुडे दैट विल बी end of the form tag, right? That will be the end of the form tag, but I'm not saying that this is only in HTML. There are many more things to be discovered, to be explored. Okay, so let's start with the programming section, the lab part. So yesterday perhaps the last topic was लिस्ट है ना. लिस्ट वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे. लिस्ट वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस yesterday. चेक बॉक्स, list and checkbox was perhaps the last topic that we discussed yesterday. Okay, now today I'm going to discuss about how we are going to group all those elements in a single frame. अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी हम टैग्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है या हमारे पास लेबल है या हमारे पास चेक बॉक्स है या हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, सो आई वांट टू इंक्लूड ऑल दोज इन अ सिंगल frame. So how we are going to allow that? Okay, so we are having grouping in a frame. How we are going to group all the codes in a single frame? So let me just open the coding part. Okay, see, this is a program. इसमें हम लोग एक कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, फील्ड सेट. देयर इज अ टैग दैट इज कॉल्ड फील्ड सेट. अभी तक हम लोग फॉर्म यूज कर रहे थे, फॉर्म के अंदर इनपुट का यूज कर रहे थे, लेवल का यूज कर रहे थे, इनपुट टाइप,
टेक्स्ट यूज कर रहे थे, इनको टाइप बटन्स यूज कर रहे थे, राइट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टैग दैट इज कॉल्ड फील्ड सेट, राइट. व्हाट डू मीन बाय सेट? सेट टर्म से आप क्या समझते हो? सेट जैसे किसी चीज का सेट मतलब ग्रुप, जैसे हम कहते हैं ना इट इज अ सेट ऑफ बुक्स, ये पूरे बुक्स का सेट है, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में जितने बुक्स पढ़ना है उन बुक्स का पूरा सेट है, राइट. So from the same root word, there is a tag that is called field set. It means it is going to connect. It is going to have so many elements together in a single frame. बहुत सारे elements हमारे पास है, उसको together एक boundary, एक framing हम लोग कर देंगे और framing के अंदर हमारे data क्या रहेंगे? Properly store रहेंगे. So we are going to discuss about this field set. See, मैंने क्या किया, फॉर्म टैग ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पे एक्शन पे मैंने रीडायरेक्ट कर दिया है home.html को, ठीक है. उसके बाद मैंने यहाँ पे फील्ड सेट को ओपन किया है. ये इंडिकेट करेगा कि इसके नीचे जितने सारे एलिमेंट्स हमने यूज किया है दैट विल बी इनसाइड वन सिंगल फ्रेम. वो हमारे एक फ्रेम में आएगा और वो फ्रेम विजिबल होगा. एक चीज मैं आपको बता दूं, येस्टरडे जो हम लोग डिस्कस किए थे फॉर्म, तो फॉर्म का कुछ भी चीज हमें विजिबल नहीं था. ऐसा नहीं था कि एक आउटलाइन विजिबल था, उसके अंदर हमारे कंटेंट जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. बट अब हमारा क्या होगा कि ये सारी चीजें जो रहेंगी दैट विल बी विजिबल, दैट ये जो फ्रेमिंग होगा दैट फ्रेमिंग विल बी विजिबल ऑन आवर वेब पेज, राइट. उसके बाद फील्ड सेट के अंदर हमारे पास एक टैग होता है लीजेंड, राइट. ये टैग होता है कि उस फ्रेमिंग के अंदर आप कोई टाइटल देना चाहते हो, कोई नाम देना चाहते हो कि व्हाट दिस फ्रेम इज गोइंग टू कंटेन. सपोज हम एक हमने फ्रेम बनाया, मैंने लिख दिया दिस फ्रेम इज फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन. सेकेंड फ्रेम मैंने बनाया दिस फ्रेम इज फॉर एजुकेशनल डिटेल्स, दिस फ्रेम इज फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट. इस टाइप के जब अलग अलग फ्रेम्स एक वेब पेज पे बनाते हैं तो वी नीड टू सेपरेट इट विथ अ टाइटल. हम लोग उसको एक टाइटल प्रोवाइड करते हैं एंड वी नीड टू सेपरेट इट विथ अ टाइटल, ठीक है. तो कैसे हम लोग उसको कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो, हमने फॉर्म लगाया, ठीक है. यहाँ पे फील्ड सेट को ओपन किया, यहाँ पे हमारा ये लीजेंड ओपन हुआ, राइट. लीजेंड में जो भी आप लिखते हो दिस इज द हेडिंग विच विल बी अपीयरिंग इन द फ्रेम. ये फ्रेम में आपको एज अ हेडिंग दिखेगा, ठीक है. फिर इसको हमने क्लोज कर दिया. इसके बाद ये तो हमने एक लेबल लिया है, एफ नेम, फर्स्ट नेम, एक लिया है लास्ट नेम और एक यहाँ पे बटन दिया है, ठीक है. उसके बाद इस फील्ड सेट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं. इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज ये सब लिखे हैं, हम चाहे तो उसको नहीं भी लिख सकते थे, ठीक है. मैंने कल आपको बताया था कि वैल्यूज जो है वो नहीं भी लिखेंगे तो वो एम्प्टी दिखेगा. वो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है या लेबल है वो हमारा क्या दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा. तो पहले हम लोग एक बार इसको करके देख लेते हैं, देन वी विल चेंज द कोड एंड वी विल सी कि कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. लेट मी एग्जीक्यूट दिस. It will come. See, can you say this? Now it is coming in a frame, है ना. एक आपको लाइन दिख रहा है, वो जो मैंने लिखा है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मैंने उसमें ऐड किया, ठीक है. ये आपका लेवल हो गया फर्स्ट नेम. चूंकि मैंने टेक्स्ट की वैल्यूज राहुल डाल दिया था, प्रिया डाल दिया था, तो ये यहाँ पे दिख रहा है. हम उसको वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, राइट. तो आप देख रहे हो वो जो हमने फील्ड सेट लिया है जिसकी वजह से ये फ्रेमिंग आ रही है, जिसकी वजह से ये क्या आ रही है, दिस फ्रेमिंग, यू आर गेटिंग दिस फ्रेम, राइट. ये फ्रेम आपको अपीयर हो रहा है, राइट. और उसके अंदर जो हमने लीजेंड यूज किया है, आप उसको एक बार चेंज करके देखो. दिस विल गिव यू आइडिया कि वेयर वी आर मेकिंग चेंजेस. सपोज लेट मी कॉपी दिस और एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं field set. ठीक है, अब यहाँ पे डाल देते हैं.
एक मिनट से ना डिस्प्ले। हाँ जी शिवम बोलिए। मैम जो ये इनपुट टाइप सबमिट है वहाँ पे वो बटन टैग का यूज करके एक बार दिखा सकते ओके 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 फाइन 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 दिखा देते हैं, ठीक है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो देखिए आपको दूसरा यहाँ पे फ्रेम बन गया है ना, उसमें आपने जोड़ी का 10th बोर्ड लिख दिया, +2 लिख दिया, तो जो भी तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग फ्रेम्स को अगर हमें अपने वेब पेज पे, ये थोड़ा लुक को अच्छा देता है और इससे बहुत चेंजेस नहीं आता है, जस्ट गिव अ डिफरेंट लुक टू योर वेब पेज, राइट। these all things are simply creating different types of looks to your web page, आपके वेब पेज को अलग अलग यूज करने के, राइट। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फ्रेमिंग चाहते हो, इफ यू वांट दैट आउटलाइन बॉर्डर टू बी अपीयर, राइट, तो you can use the concept of field set, right, and inside that if you want आप legend का यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप legend का यूज नहीं भी कर सकते हो। नहीं यूज करोगे तो क्या होगा वो भी आप देख लो, क्योंकि आप खुद से जितना इसको एक्सप्लोर करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज करने से क्या क्या हो रहा है। सपोज मैं इसको हटा देती हूँ, क्या चेंजेस आ गया, बस आपको लाइनिंग दिख रही है ना, वो आपको लाइनिंग दिख रही है, उसके अंदर कोई हेडिंग आपको नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया कि व्हाट इज द यूज ऑफ रीजन, रीजन का क्या यूज है, एंड फील्ड सेट का क्या यूज है। उसके अंदर तो बाकी जो भी चीजें हमने यूज किया, दैट वाज द सेम कंसेप्ट व्हिच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। बाकी तो जो इनपुट टाइप है, टेक्स्ट है, लेबल है, या फिर जो भी बटन्स है, दैट इज द सेम कंसेप्ट व्हिच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। So participants, is this part is clear to you? What is the use of field set and what is the use of reason? Please give a response so that I can get an idea, and after that I can move ahead with the Sivam's queries, what Sivam has asked. So no one is giving any reply. It means no one has understood. Okay. So right now I'm getting yes ma'am, Nishad, Mustafa, Shweta. Okay, fine, fine. Now see, now Sivam is saying that in place of clear. Okay, okay, okay. Now see, what Sivam is saying, ma'am, in place of this, we should use button. Okay, we can use that. So let me open the button tab. वहाँ से कोड को कॉपी करके बस यहाँ पेस्ट कर दें। फिर हम लोग देखे थे बटन के बारे में, we have discussed about that button. Let me open that और उसको बस कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बटन button, so this was label, this was button, ठीक है। इसको ओपन किया और he wants to substitute this with the button tag. Okay, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। So this is the code, so just यहाँ से Control C, and this was the code. Where is the button? In the multiple folder, because this was the folder, looking in a single folder. इसको open किया, यहाँ पे आप ये सेइंग कि इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको यहाँ से आप सेव कर दो। So did you get the result, Shivam? Can you say it?
Shivam, just unmute yourself because you put these queries. So is it clear to you, Shivam? Yes, Shivam is raising the hand. Yes, Shivam. Yes, ma'am, it's clear now. So this part is clear, my dear participants. What is the use of this legend and what is the use of data list? How you are going to just give a different look to your frame. Just you want to give a different look to your web page, so you can just give this additional extra attractive. You can make your web page more attractive with this. Okay. So now let's move to the मैम लीजेंड टैग में अलाइनमेंट यूज हो सकता है यस कलर भी यूज हो सकता है टेक्स्ट फॉन्ट आप इस अब हम लोग अलाइनमेंट का यूज नहीं करते सिंपल आप ना स्टाइल को कॉपी कर लो क्योंकि स्टाइल में आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं फॉन्ट है वो सारी चीजें हैं राइट तो आप सिंपल एक ऊपर में स्टाइल शीट बना दो ऊपर में ठीक है और उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो सो दैट वो आपके पूरे वेब पेज पे अवेलेबल हो जाएगा ओके ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम ओके okay see, we are coming to the next one that is grouping हो गया list हो गया अब multiple lines okay let me open this multiple line जैसे आप देखते हो ना बहुत जगह फीडबैक लिखा रहता है फीडबैक का फॉर्म रहता है और उसमें 3-4 लाइन के आपके पास ऑप्शन रहते हैं मैम बटन वाले को एक बार शो कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेना है बटन वाले को button means you are talking about right now where I have included this na this one you want to take this button Mustafa you want to take this screenshot did you take it should I proceed ले लिया screenshot दूसरा open करूं Mustafa you put the question okay fine so let's open the next one this was multiple lines how we are going to add this multiple line concept okay जैसे आप देखते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप बहुत सारे वेब पेजेस में ही आप देखते हो लिखा रहता है फीडबैक ऑप्शन राइट एंड फीडबैक में रहता है पुट योर नेम ईमेल एड्रेस एंड फीडबैक तो फीडबैक हम लिख देते हैं कि यस इट इज गुड या कोई वेबिनार ही होता है या कुछ भी होता है जिसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे फीड करना है राइट तो जनरली वो इन्फॉर्मेशन एक लाइन का नहीं होता है एक वर्ड का नहीं होता है राइट that is basically more than 2 lines 3 lines so for that simple text is not helpful सिर्फ text का यूज करेंगे और input type as a text हम लोग यूज करेंगे तो it won't work बहुत ज़्यादा वो वर्क नहीं करेगा so we have the separate option for that is called text area we have another tag in the फॉर्म टैग के अंदर ही हमारे पास एक सेपरेट सा टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया राइट जैसे हमने टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे ओपन किया ठीक है और यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया ताकि ये उसका नाम हो गया इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल अभी नहीं है मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम लोग इसके अंदर बहुत सारी कोडिंग करेंगे तब हमें इसकी आईडी और इसकी नेम की जरूरत पड़ती है फॉर द टाइमिंग अगर हम इसके नेम को स्किप भी कर देते हैं तो बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा अब जैसे हमने अपने टेक्स्ट एरियाज में क्या दे दिया है रोज एंड कॉलम्स को फिक्स कर दिया है मतलब देयर शुड बी 10 रोज एंड देयर शुड बी 30 कॉलम्स राइट और उसके अंदर मैंने लिख दिया एक हेडिंग स्किल डेवलपमेंट आप उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते थे ताकि यूजर अपने फीडबैक को डालेगा और फिर मैंने नीचे एक बटन बना दिया इससे क्या आपका आउटपुट आ रहा है आप वो देखो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज को मल्टीपल लाइंस कह रही हूँ हाँ जैसे ये एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आया अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन से ज्यादा भी एंट्री कर सकते हैं राइट तो आपका 10 रोज एंड 30 कॉलम्स का है आप यहाँ पे जितने आपको एंट्रीज करने हैं यू आर गोइंग टू पुट योर एंट्रीज हियर राइट जितनी एंट्रीज आपको डालनी ऑटोमेटिकली वो स्क्रॉल बार भी आ जाएगा आपको करने की जरूरत नहीं है दैट स्क्रॉल बार विल अपीयर अपने आप वो स्क्रॉल बार आ जाता है ठीक है अब आप इसमें जितने लाइंस के टेक्स्ट की एंट्री करनी है जो इसका स्ट्रेंथ है 30 कॉलम्स का उस चीज को आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं राइट तो ये उसका जो रोज एंड कॉलम्स आप डाल रहे हो वो उसका लंबाई चौड़ाई को डिफाइन करता है राइट अगर आपको बहुत ज्यादा एंट्रीज लेना है लाइक सपोज इफ यू वांट टू टेक एक पैराग्राफ में कुछ एंट्री लेना है कुछ उस पर्पज से तो रैदर देन यूजिंग द टेक्स्ट फील्ड से यूज करने से अच्छा है वी विल बी गोइंग अहेड विद द कंसेप्ट ऑफ
text area. So it will give you the option. Okay, it will give you the option to have multiple lines entry from the user end. User उसमें से multiple lines की entry कर सकता है. Is that clear? This part is clear. What do you mean by this text area? Yes, ma'am. Subne. What about others? Okay, fine. Okay. So let's start with the next program. It is about selecting single option, right? So we have option grouping, hotel, spots, and we have radio buttons. See, yesterday there was a question raised by one of the student कि मैम अगर हमें सिंगल सिलेक्शन करना है तो क्या होगा. When I was going through the check box, जब मैं आपको check box को describe कर रही थी उस समय there was a question raised by someone from your side only कि मैम if we want to go for single selection, like आप देखते हो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स अगर होते हैं या फिर आपके भी जो भी एग्जाम्स होंगे आपका इस now what is TRAVNZZ? What is this, Priyanka? TRAXVNNZZ? What you have written there? How to traverse? What is this? I'm not getting what you have written, Priyanka. How to TRAXVNNZZ? What is this? Sorry, mistype. Okay. I thought what are you asking? Okay. So if we want to go for the single selection, okay, अगर हमें single selection का option डालना है, ठीक है, तो we have the concept of radio buttons. अच्छा, do you know why it is named as radio button? How many of you have seen radios at your home? Yeah, your grandfather, grandparents must be carrying radio. How many of you have seen the radio? Or you have used it also? No one. Participants, you have not seen the radio. Surprising. I have used. Nishat Bano, she has used. मीनाक्षी, she has used. Okay. So रेडियो में क्या होता है, एक बार में हम एक ही स्टेशन लगाते हैं ना. जैसे आप उसको मूव करोगे तो एक स्टेशन आएगा, फिर थोड़ा सा उसको चेंज कर दोगे तो वो अलग स्टेशन को पकड़ लेता है. बट एट अ टाइम it will redirect to you to a only single one option, है ना. मतलब सिंगल वन स्टेशन, जैसे विविध भारती है या 98.3 FM है, जो भी है जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस चीज को कनेक्शन मिलता होगा, एट अ टाइम वो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है. इन द सेम वे दिस बटन इज नेम्ड एज रेडियो बटन. इस बटन का नाम क्या दिया गया है, रेडियो बटन. कीपिंग माइंड में यही चीज को ध्यान में रखें कि एट अ टाइम यूजर विल बी सेलेक्टिंग ओनली वन ऑप्शन. यूजर बस एक ऑप्शन को एक बार में क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, राइट. सो देखिए रेडियो बटन में कैसे करना है हमें. फॉर्म टैग तो हमारा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज जब भी हम चीज़ों को उस तरीके से करेंगे इट विल ऑलवेज इनसाइड द फॉर्म टैग, राइट. अब मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप रेडियो, आईडी लिख दिया है मेल. जैसे मैं ऑप्शन देना चाहती हूँ जेंडर, सेलेक्ट योर जेंडर, है ना. तो जेंडर के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है. तो जेंडर में क्या होता है कि व्हेन यू आर फिलिंग एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर जब ऑनलाइन फॉर्म्स में फिल करते हो तो जनरली यू गेट दिस ऑप्शन. आपको ये ऑप्शन मिलता है ना, you get this option na, or you don't get this option? You get this option, students? Yes, what happened to you today? तो ये ऑप्शन मिलता है ना, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म पे जब इंफॉर्मेशन भरते हो तो यू चूज आइदर वन, कोई एक चीज को आप फिल करते हो, राइट. इन द सेम वे अगर कुछ वैसा मान लीजिए आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने वेब पेज पे डालना चाहते हैं कि जो भी नए यूजर आएंगे वो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, राइट. तो उस केस में हम ऑप्शन देंगे जेंडर, सेलेक्ट योर जेंडर, या फिर आप कोई क्विज टाइप का वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स बच्चे ले सकते हैं या दे सकते हैं. इन दैट पर्टिकुलर केस if you are having question and you are having 4 options for that, so at a time only one option will be true. So for that particular case we have the concept of radio buttons. Okay, so just see, बाकी चीजों तो सेम है, बस यहाँ पे टाइप में क्या कर देना, हमें रेडियो. टाइप में टेक्स्ट लिखते थे, अब यहाँ पे टाइप में हमें क्या यूज करना है,
radio. Okay, not complete radio button, only radio. So now see what will be the effect on the output. Can you feel it? Just see on the screens. See, at a time I am able to select only one na. The moment I am going to click another one, वो deselect हो जा रहा है. So this was yesterday queries. Who asked this question? So this is the answer of your question. Yesterday there was a queries कि मैम अगर हमें single selection चाहिए. I don't remember the exact name of the participant, but this was the queries when I was discussing the checkbox. So this query came, मैम how we are going to have single selection. अगर हमें single selection करना है तो हम कैसे करेंगे, right? उस केस में आपको इनपुट टाइप का नेचर क्या डाल देना है, रेडियो. द मोमेंट यू आर गिविंग इट एज अ रेडियो, then you will be getting the option and you can select either one. अब आप यहाँ पे और अच्छे से फील्ड लिस्ट फील्ड सेट का यूज करके लीजेंड का यूज करके आप ऑप्शन डाल सकते थे, चूज योर जेंडर, है ना. इससे क्या होता है वो बहुत अच्छे से दिखता है. जैसे मान लीजिए इस पार्ट को हम कॉपी करके यहाँ डाल देंगे. जैसे हमारे पास जो ये कोड है ग्रुपिंग इन अ सिंगल फ्रेम, इस कोड के कुछ पार्ट को कॉपी करते हैं. ये फील्ड सेट वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर देते हैं और इसको हम अपने में पेस्ट कर देते हैं जो हमारा रेडियो बटन था, ठीक है. वी हैव द रेडियो बटन ना. सो रेडियो बटन हमारा यहाँ पे है, इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दो. इस फील्ड सेट को फॉर्म से पहले आप बंद कर दो तो देखो आपका लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो जाएगा. कंट्रोल भी इसको यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है. सॉरी एक्स्ट्रा एंगल लगे हो गया, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है. और इसमें आप लीजेंड का यूज कर दो तो और भी अच्छा आ जाएगा. लीजेंड मैंने डाल दिया तो कॉपी कर देते हैं. लीजेंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, लीजेंड यहाँ पे डाल देते हैं. चूज योर जेंडर, जेंडर, है ना. फिर इस लीजेंड को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. क्या करती है, क्लोज कर. अब आप देखो तो जरूरत के अनुसार आपको जहां चेंजेस करना है यू कैन मेक चेंजेस टू योर कोड, राइट. सी दिस द होल कोड, दिस वाज द कोड ना. अब देखो थोड़ा चेंज होके आ गया. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट कि हाउ टू यूज, कहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम फील्ड सेट का यूज करेंगे, कहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो लीजेंड का यूज करके वी कैन मेक आवर फॉर्म टू हैव अ गुड लुक एंड फील. We can have good look and feel to our frame. So this part is clear. Okay, Shweta Yes, ma'am. replied yes ma'am. Okay, fine, Shivam. Okay, okay. तो आप इसको भी चाहो तो उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. रुपेश चौधरी रिप्लाइड, विशाखा रिप्लाइड. ओके गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोड. तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कोड का इंटीग्रेशन होगा, कैसे जरूरत पड़ेगी. अभी तो हम लोग सेपरेट कोड पढ़ते हैं. अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम, हमारे पास जो टैग्स अवेलेबल है हम उसको यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इज देयर एनी क्वेरीज? क्लियर मैम, डन. ओके फाइन. Now we have the select option. What is there in that? Let me check it out. दिस इज द सेम दैट वी वर डूइंग. वो जो हमारे पास ऑप्शन थे ना, जो हम लोग लिस्ट की तरह किए थे, ठीक है. जो लिस्ट की तरह ऑप्शन था, दिस इज द सेम. तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन यूज किए थे फील्ड सेट, डेटा लिस्ट का यूज किए थे, राइट. यहाँ पे एक नया टैग आ गया है सेलेक्ट. अगर आप चाहो तो हमारे पास एक और टैग है सेलेक्ट, जिसका भी आप यूज कर सकते हो, राइट. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये सेम जस्ट लाइक आपका लिस्ट की तरह है. जैसे लिस्ट में हम लोग के पास ड्रॉप डाउन मेनूज आ रहे थे, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे, वो चीज आपको यहाँ पे भी होगा. बट यहाँ पे मैंने क्या किया, rather than using डेटा लिस्ट, वहाँ पे हम लोग डेटा लिस्ट फ्रेम का यूज किए थे और उसके अंदर ऑप्शंस डाले थे हम. हमारे पास एक और टैग है विच इज वेरी मच सिमिलर टू द डेटा लिस्ट टैग, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट टैग, राइट. ये भी जस्ट लाइक आपका लिस्ट की तरह ही बिहेव करेगा. लेट मी शो यू द आउटपुट, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर कि इट इज द सेम. It depends upon you, either you use that list option or you can go with this select tag also. दोनों का यूज आप कर सकते हो. देखो यहाँ पे जैसे हमने चूज अ कोर्स आ रहा है ना ऑप्शन,
सो इट इज जस्ट लाइक द लिस्ट, बट इसमें हमने एक नया टैग यूज किया दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट। तो दोनों का आउटपुट सेम है, इट्स अप टू यू, आप किसी भी टैग का यूज करके यू कैन अचीव योर टारगेट। इफ यू वांट यू कैन यूज द डेटा लिस्ट ऑल्सो, और इफ यू वांट यू कैन यूज द सेलेक्ट टैग ऑल्सो। सेलेक्ट टैग का भी यूज, सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं, वी विल यूज ऑप्शन इनसाइड दिस सेलेक्ट टैग to have multiple options for the user। multiple options हम यूजर को देंगे, वो वहां से ऑप्शन को क्या करेगा, चूज कर सकता है। दिस वी डिस्कस इन द लिस्ट, बट देयर वी हैव यूज अनदर टैग दैट इज कॉल्ड डेटा लिस्ट। वहां पे हम लोग डेटा लिस्ट का यूज किए थे, यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड select tag, that is called select tag। so you are free, you can use any one of the tag, आपको जो जरूरत पड़े आप किसी टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। now let's move to the next one, शिवम। yes शिवम। मैम जो ड्रॉप डाउन टैग है और ये सिलेक्ट आईडी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैम? कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों पर्पस के लिए इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हो। ओके। तो वो तो जैसे हमारे पास इनपुट टाइप एज अ बटन, सबमिट है एज अ बटन है, तो देयर इज नो डिफरेंस इन दैट, है ना। इन द सेम वे दोनों के लुक एंड फील के आपके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। अगर हम यूजर को एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करने का दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में 4 ऑप्शन, हम चाहते हैं यूजर कैन सेलेक्ट एनी 3, ओके, तो वी कैन आल्सो डू दैट, वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हेडिंग है आपका अलाउइंग मल्टीपल सिलेक्शंस फॉर द यूजर, ठीक है। अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट का यूज किया है, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया है साइज। सेलेक्ट के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया दैट इज कॉल्ड 4, दैट इज साइज इज कॉल्ड 4, राइट। तो ये एक बार में 4 डेटास को आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये भी आपका लिस्ट ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पे हमने यूजर को ऑप्शन दे रखा है कि वो एक बार में मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया है मल्टीपल। सेलेक्ट के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट क्या यूज किया है, मल्टीपल। इन दैट केस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर यूजर को 4 या 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यूजर एक से ज्यादा ऑप्शन को भी एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकता है, राइट। लेट मी शो यू द आउटपुट। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा साइज 4 था, इसका मतलब था कि एक बार में 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। अब जैसे मैंने वॉल्वो सेलेक्ट किया, मुझे और भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करना है। यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल बटन ऑफ योर कीबोर्ड। उसके बाद आपको जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप देखो आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो पा रहा है। पार्टिसिपेंट्स कैन यू सी व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहने जा रही हूँ, व्हाट इज द सेंस ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस? यस मैम। ओके रवि, शिवम, ओके फाइन। तो आपको उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, होल्ड डाउन द कंट्रोल, विंडोज का जो कंट्रोल बटन है, ठीक है, उसको आपको प्रेस किए रहना है, ठीक है। उसको आपको क्या प्रेस करके मोर देन वन ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्रेस किया विथ माय हैंड एंड देन आई एम सेलेक्टिंग, एक बार डी सेलेक्ट हो जा रहा है और दूसरी बार सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो सबमिट, ओके सॉरी किसी गलत पेज पे मैंने रीडायरेक्ट कर दिया जो कि वेब पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देना है तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल। इनसाइड द सेलेक्ट टैग यू हैव टू यूज द मल्टीपल एट्रीब्यूट, आपको मल्टीपल बस लिख देना है। यू हैव टू यूज द एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। जैसे ही आप मल्टीपल लिख दोगे इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन यूजर कैन सेलेक्ट। देन हाउ यूजर कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, देन बाय सिंपली होल्डिंग द कंट्रोल बटन। जो आपका कंट्रोल बटन है उसको प्रेस करके बाकी ऑप्शंस को वो सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो मैंने साइज 4 लिखा है वो इसका मतलब ये हुआ कि एट अ टाइम 4 ऑप्शंस विल बी विजिबल। हम साइज को 2 भी कर सकते हैं, साइज को 5 भी कर सकते हैं, एक बार में उतने ऑप्शंस एक साथ स्क्रीन पे विजिबल होंगे। अदरवाइज ड्रॉप डाउन में एक क्लिक करने से सारे ऑप्शंस आपके विजिबल होते थे। Ma'am, if you want to insert more than one button like submit another button, second button is not anchored with, is not, but ma'am, if you want to insert more than one button like submit another, but second button is not anchored with other, क्या आप बोल रहे हो प्रियंका? एक बार अनम्यूट करके बोलो ना, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उससे द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी, जस्ट काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन प्लीज put forward your question, because from the chat box the question is not clear to me. Priyanka Bharti, please unmute yourself
and then ask your question, because whatever you have written in the chat box, that is not clear to me. Priyanka Bharti? Okay, perhaps maybe network issue, she is unable to connect with the audio. Okay, anyway, so let's start with the next tab. So मल्टीपल सिलेक्शंस हमने देख लिया. प्री सेलेक्ट वैल्यू, अगर हम चाहते हैं पहले से ही कुछ वैल्यूज हमारे सेलेक्टेड रहे, अगर यूजर नहीं भी ऑप्शन प्रेस करता है तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू है जो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा में सबमिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्री सेलेक्टेड वैल्यू. पहले से कुछ वैल्यूज अगर हमारे सेलेक्टेड हैं उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, राइट. जैसे अभी तो बस 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे थे, मैं चाहती हूँ कुछ ऑप्शंस को पहले से वो प्री सेलेक्टेड रहे, ठीक है. जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया चूज कार, मैंने 5-6 कार का नाम लिख दिया, और जिसमें आप देखो एक फियाट जो कार है जिसमें मैंने एट्रीब्यूट यूज कर दिया है सेलेक्टेड. मैंने एट्रीब्यूट क्या यूज कर दिया है, सेलेक्टेड, राइट. तो ये सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स बताएगा कि हर एक यूजर के लिए ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली पहले से सेलेक्ट है, ठीक है. अगर आप नहीं भी कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके ऑन बिहाफ में जो डेटा विल सबमिटेड टू द डेटाबेस में जो डेटा आपका सबमिट होगा दैट विल बी फियाट, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टीज में क्या डाल दिया, उसके एट्रीब्यूट्स में मैंने कौन सा ऑप्शन यूज कर दिया, सेलेक्टेड. तो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट विल मेक दैट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू कहने का मतलब अगर यूजर उस ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को नहीं भी चूज करता है तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी पहले से डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है दैट विल बी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा बस लगा देना है इन द ऑप्शन टैग, और जिस भी ऑप्शन को आपको पहले से प्री सेलेक्टेड बनाना है ताकि वो ऑप्शन पहले से आपका सेलेक्टेड रहेगा, तो सिंपली यू हैव टू यूज दिस बटन सेलेक्टेड. आपको उस ऑप्शन बटन में एक एट्रीब्यूट यूज कर देना है दैट इज कॉल्ड सेलेक्टेड. ओके, जस्ट सी. सी अब देखो ऑलरेडी फियाट इज सेलेक्टेड देयर, है ना. ऑलरेडी फियाट पहले से देखो आपका, जैसे ड्रॉप डाउन कह रहे हो फियाट पहले से क्या है, सेलेक्टेड. और नहीं भी आप वहां पे माउस ले जा रहे हो तो दैट इज ऑलरेडी इन द ब्लू कलर, दैट इज ऑलरेडी प्री सेलेक्टेड. तो पहले से ऑटोमेटिकली क्या है, सबमिट है. अगर आपको उसके अलावा कोई और ऑप्शन को लेना है तो आप ले लो. अगर आप नहीं कुछ लोगे तो ऑटोमेटिकली फियाट विल बी सेलेक्टेड. आर यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री सेलेक्टेड ऑप्शन? Participants, are you getting what is the meaning of this pre-selected option? अगर आप चाहते हो कि पहले से कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहें, अगर यूजर किसी चीज को नहीं भी चूज करता है या फिर अगर चूज भी कर देता है तो अगर वो चूज करता है तो जो चूज किया है दैट ऑप्शन विल बी टेकन एज अ वैल्यू. और इफ द यूजर डजंट चूज एनी ऑप्शन, अगर यूजर कोई ऑप्शन को नहीं चूज करता है तो व्हाट ऑप्शन इज गिवन इन द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट जिस एट्रीब्यूट का ऑप्शन सेलेक्टेड एज अ एट्रीब्यूट सेलेक्टेड ऑप्शन में मार्क है दैट विल बी टेकन एज द डिफॉल्ट वैल्यू, and if you are going to submit the form that value will be submitted as a database in your record. आपके रिकॉर्ड में वो वैल्यू चला जाएगा एज अ डेटाबेस. ऐसे बहुत जगह डेटा होता है इस टाइप के एप्लीकेशन जहाँ पे हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी डालना होता है, तो हम लोग उसका यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है. Let me open the next one. ये तो साइज मैंने बता दिया ना, चलो साइज तो हम लोग कर ही लिए कि साइज बताता है कि एक बार में कितने वैल्यूज हमारे अपीयर होंगे. जैसे साइज हमने 3 लिख लिया और यहाँ पे वैल्यूज कितने हैं, 4. एक बार में कितने वैल्यूज हमें दिखेंगे, 3 वैल्यूज विल बी शोन, राइट. So already we have discussed this size but still I'm going to execute it. देखिए साइज 3 था तो अभी कितने वैल्यूज दिख रहे हैं आपके, 3. उसमें हमारा साइज 4 था तो हमारा वैल्यूज कितना डिस्प्ले हो रहा था, 4 वैल्यूज वाज डिस्प्ले, 4 वैल्यूज हमारे दिख रहे थे. तो साइज आपका डिफाइन एट अ टाइम, एक बार में अगर साइज आप एट्रीब्यूट का यूज नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ओनली वन ऑप्शन, बस वो लिस्ट आपका एक ऑप्शन को दिखाता है. बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले मोर देन वन वैल्यूज एट अ सेम टाइम, राइट, तो आप उसमें साइज प्रॉपर्टीज का यूज करके यू कैन गिव द वैल्यूज. आप साइज प्रॉपर्टीज का यूज करके वैल्यूज की एक बार में कितने वैल्यूज आपके दिखेंगे आप उसको यूज कर सकते हो, राइट. नाउ लेट्स मूव how we are going to change the settings of text area. जैसे हमने text area पढ़ा था for multiple text area जो हम लोग अभी
डिस्कस किए थे वो टेक्स्ट एरिया हमारे किस चीज के लिए था, मल्टीपल फॉर्म्स के लिए था। अगर मल्टीपल डेटास को आपको एक बार में रिसीव करना है, राइट, तो अगर आप चाहें तो उसके साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द साइज, रोज एंड कॉलम्स, या फिर आप स्टाइल प्रॉपर्टीज का भी यूज, उसमें हमने रोज एंड कॉलम्स का यूज किया था। इसके जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रोज एंड कॉलम्स। हमने रोज एंड कॉलम्स को डिस्कस किया था कि रोज एंड कॉलम से हम लोग वैल्यू को सेट कर रहे थे। अब आप यहाँ पे चाहो तो टेक्स्ट एरिया के अंदर स्टाइल जो हमारा एट्रीब्यूट है, दैट इज द CSS एट्रीब्यूट, आप स्टाइल से भी उसको फिक्स कर सकते हो। स्टाइल विद मैंने 200 पिक्सल डाल दिया, राइट, और हाइट मैंने क्या डाल दिया 600 पिक्सल। इसके अंदर के कंटेंट को आप हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया ताकि वो एम्प्टी आपको दिखेगा और आप उसके अंदर इतने डेटा को इनपुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो which one 86, देखो मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज डाल दिया, इसको रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, सेव नहीं किया। ये आपका साइज इतना सारा मैंने डाल दिया है ना, साइज को आप कम भी कर सकते हो। तो या तो आप रोज एंड कॉलम से भी प्रोवाइड कर सकते हो साइज को, जो हम लोग इसके प्रीवियस जो मैंने टेक्स्ट एरिया वाला प्रोग्राम दिखाया था आपको, उसमें हम लोग डेटा को साइज पे स्पेसिफाई कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। And if you don't want to use the concept of row and column, you can use the attribute that is called style attribute of the CSS. आप CSS के style attributes का भी use करके if you want you can get the डेटा जिसके साइज को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। वंस अगेन आप एक बार यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको आप कम करोगे तो और भी डेटा कम हो जाएगा। सपोज आई मेड डेटा 50, दिख रहा है आपको? पार्टिसिपेंट्स कैन यू सी द डिफरेंस, चेंजेस कैसे हम लोग हाइट एंड विड्थ में वैल्यूज को डाल के हम लोग चेंजेस करें। तो आप एक बार इनपुट करके देख लो कि कितना बड़ा एरिया आपको चाहिए, कितना स्पेस आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पिक्सल की वैल्यू को सेट कर दो। आपको आइडिया मिल गया कि 20 या 50 या 60 क्या बता रहा है, तो उसके अनुसार आप अपने डेटा को यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप इस हाइट एंड विड्थ ऑप्शन का यूज करो। इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस ऑप्शन, यू कैन यूज द ऑप्शन दैट इज कॉल्ड रो एंड कॉलम। आपके पास रो एंड कॉलम का भी एट्रीब्यूट्स था इस टेक्स्ट एरिया के अंदर, रो इक्वल्स टू दिस मच, कॉलम्स इक्वल्स टू दिस मच, तो आप वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। और इफ यू वांट यू कैन यूज दिस स्टाइल ऑप्शन आल्सो, राइट, इट्स अप टू यू, आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, it is about submit button. Next program is submit. So already we have seen the submit button. Now let's see if there is any something new I have added there. Input submit, no, ठीक है, it is the same जो हम लोग बटन का यूज कर रहे थे। ठीक है, it is the same, so no need to execute this program. It is the same कि how to work with the submit button, बटन को आप कैसे डिजाइन करो, it is just the same, already we have used this। यहाँ पे हमारे पास डेटा दिख रहा है, it is submit, जिसको मैंने home.html से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। ठीक है, so no need to go in details with this। नॉट टेक्स्ट फील्ड, अब टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे होगा मे बी साइज एंड स्पेस को फिक्स करना है ना, कि हमारे पास कितना साइज, जैसे यहाँ पे ओके, इसमें भी नहीं मैंने बताया, मैंने इसके नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने बताया है कि टेक्स्ट फील्ड को आप किस तरीके से, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि बाय डिफॉल्ट 20 कैरेक्टर्स हमारे टेक्स्ट फील्ड का होता है। अनटिल अनलेस आपने साइज पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स एक बार में कितना कैरेक्टर्स को ले सकता है, 20। Did you get this point? What I mean to say with this? 20 characters at a time. The default width of text input field is 20 characters. Okay. So did you get this? Maybe one of the questions in your exams. What is the default width of this text? वो default value क्या लेता है? तो default value क्या ले रहा है ये? 20 कैरेक्टर्स, मतलब एक बार में 20 कैरेक्टर्स को आप डालोगे तो वो डेटा ले लेगा। अगर आप चाहते हो मोर देन फॉर दैट, तो टेक्स्ट एरिया में जैसे वैल्यूज को इंक्रीज करें, वैसे हमारे पास यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है लेंथ प्रॉपर्टी, आगे हम कोड में मैंने डाला है। लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके इफ यू वांट यू कैन सेट द डेटा साइज ऑफ योर टेक्स्ट फील्ड। जैसे होता है ना, आप कभी कभी देखते हो बहुत जगह लिखा आता है मिनिमम कैरेक्टर शुड बी 20,
या password should be of maximum 8 length. Participants, have you seen such data somewhere? कभी आप देखे हो, कभी कभी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो बोलता है पासवर्ड शुड बी ऑफ मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. हैव यू सीन दिस? और नहीं देखा है? बहुत बार मैम. चलिए अच्छा है. तो एट्रीब्यूट्स है जिसके हेल्प से हम लोग उस डेटा को क्या करते हैं, सेट करते हैं. जिससे क्या होता है कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक बार में वो उतना ही डेटा को लेगा. ठीक है, अभी जस्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उन चीजों को डिस्प्ले करूंगी आपको. चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड द टेक्स्ट कलर. ओके फाइन. देखिए यहाँ पे हमने वो यूज किया है ऑप्शन मैक्स लेंथ 30. जैसे इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट या स्टाइल में कलर डाल दिया है, फॉन्ट में लिख दिया वर्धना फॉन्ट है, बोल्ड कर दिया मैंने, फॉन्ट साइज मैंने 12 पिक्सल कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने ये कलर का एक कोड डाल दिया है. तो आप चाहो तो अपने जो भी आपके पास इनपुट टैग्स है उसके कलर्स को आप इस तरीके से स्टाइल से चेंज कर सकते हो. बटन्स है या लेवल है तो आपको अलग अलग कलर्स अगर डालना है तब उस चीज़ को यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हो. स्टाइल CSS में आपने पढ़ा है, समझ लिया कि स्टाइल क्या होता है. कलर का मैंने ये वैल्यू डाल दिया. फैमिली, फॉन्ट फैमिली जो मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल बताया था, फॉन्ट फेस मैंने आपको बताया था, राइट. बोल्ड कर दिया मैंने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का साइज जैसे मैंने 12 पिक्सल डाल दिया और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या डाल दिया है, एक कलर डाल दिया है. साइज 10 डाल दिया है मैंने और मैक्स लेंथ क्या डाला है 30. इट मीन्स एक बार में कितने क्या. मैम नहीं हो रहा है मैम, रेडियो बटन एक बार फिर से बता दीजिए. अभी भी सिंगल सिलेक्शन नहीं हो रहा. अच्छा ठीक है प्रतिष्ठा, लेट मी कंप्लीट दिस प्रोग्राम देन आई विल शो यू द प्रोग्राम. एक बार आप चेक कर लेना. और किसी ने रेडियो बटन किया है पार्टिसिपेंट्स? एनीवन हैज ट्राइड राइट नाउ रेडियो बटन? निखिल, यस निखिल आपका हो गया रेडियो बटन? निखिल अनम्यूट योरसेल्फ. निखिल यस मैम हो गया रेडियो बटन. वर्किंग ना, कोई इशू नहीं यस आ रहा ना रेडियो बटन में? एक बार प्रतिष्ठा मैं आपको दिखाऊंगी कोड को, एक बार आप मैच कर लेना. मे बी मैम यस मैम, बट सिंगल सिलेक्शन शो नहीं कर रहा. वो शो नहीं करता है सिंगल सिलेक्शन. आप उस पर क्लिक करो, चेंज आप करता उस है पर मैम, क्लिक क्लिक करने करो पे तो चेंज करता है. जैसे जब एक ऑनलाइन एग्जाम देते हैं ना, MCQ में सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइप से हमारा ऑप्शंस चेंज करता है. हाँ, तो आप उसको अभी देखो एक बार सेलेक्ट करोगे तो देखो एक ऑप्शन होगा, फिर दूसरा ऑप्शन होगा. एक बार दूसरे को सेलेक्ट कर दो तो पहला वाला जो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर से मैं कोड शो कर दूंगी, डोंट वरी, एक आप मैच कर लेना. ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन करती हूँ. इससे हमारा क्या होगा कि मैंने मैक्स लेंथ क्या डाल दिया है 30. अगर नहीं कुछ डालते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता 20 होता. हम क्लिक करने पे सारा सिलेक्ट हो जा रहा है. अच्छा, आई विल शो यू द कोड निशित, आई विल शो यू द कोड. एक बार आप उसको मैच कर लेना. सो डोंट वरी, आई विल शो यू द कोड. ओके, अब देखिए मैक्स लेंथ मैंने 30 डाल दिया. अब जैसे बाय डिफॉल्ट तो 20 था कैरेक्टर्स, अगर मैक्स लेंथ मैंने 30 डाल दिया तो एक बार में ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को ले सकता है, 30 कैरेक्टर्स को. लेट मी शो यू. दिखा आपको? बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया है. अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 30 के बाद नहीं लेगा. देखो 30 कैरेक्टर हो गया. तो मैं एक्स्ट्रा डालने की कोशिश कर रही हूँ, इट इज नॉट टेकिंग. इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से आप इनपुट टाइप के अंदर स्टाइल का यूज करके बाकी चीजों के भी कलर को चेंज कर सकते हो. लेबल का या जो भी कलर है, जिस चीज का भी कलर आपको चेंज करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल कोड यू कैन चेंज इट. ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, so I hope this part is clear कि how we are going to change the font style, font color. Okay, एक बार जिनको रेडियो बटन में कंफ्यूजन हो गया था, आई एम शोइंग यू द कोड. एक बार आप देख लीजिए कि व्हाटएवर यू हैव एग्जीक्यूटेड कहाँ आपने मिस्टेक किया. जस्ट सी इट. बस आप लोग के लिए उसको ओपन कर दी हूँ रेडियो बटन. जस्ट सी इट. इनपुट टाइप रेडियो लिखा है. अगर रेडियो नहीं लिखा होगा तो वो चेकबॉक्स कुछ वैसा तो नहीं
लिख दिया, अगर लिखा होगा तभी वो वर्क करेगा। प्रियंका एंड निशत, प्लीज चेक द कोड और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेटर ऑन यू कैन मैच विद द कोड। आप बाद में भी उसको मैच कर सकते हो, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसको मैच करके आप देख लेना, ठीक है? इज इट ओके? Nishat and the girl who asked the question, please take. Okay, Nishat. Okay, fine. Okay, now let's move to the next one. It is about password. जैसे मान लीजिए कि हम टेक्स्ट फील्ड में तो जो भी एंट्री करते हैं तो वो तो हमें दिख जाता है, लेकिन अगर आप एज अ पासवर्ड कहीं किसी चीज को एंट्री करते हैं तो पासवर्ड तो आपको नहीं दिखता है ना? उसके जगह पे सिंबल दिखता है आपका, राइट? तो अगर आप इनपुट टाइप पासवर्ड लिख दोगे, है ना, तो जो भी एंट्री आप उस टेक्स्ट में करोगे, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी एंट्री करोगे, दैट एंट्री वोंट बी विजिबल टू यू। अगर आप लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ पे पहला जो यूजर नेम होगा उसको आप टेक्स्ट रखोगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखोगे, और जो आपके पासवर्ड के ऑप्शन होंगे उसको आप क्या करोगे, इनपुट टाइप क्या रखोगे, उसका पासवर्ड रखोगे। इससे क्या होगा कि जो भी एंट्री वहाँ पे यूजर करेगा, दैट एंट्री वोंट बी विजिबल, दैट विल बी टेकन द सिंबल, वो सिंबल के फॉर्मेट में दिखेगा, इट वोंट बी विजिबल टू यू। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रही हूँ, कुछ आपको दिख रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ना? Participants, can you see this? It is not the word नहीं दिख रहा हमें, rather it is the showing the symbol. वो हमें क्या डिस्प्ले कर रहा है? सिंबल को डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ पासवर्ड मीन। अगर हमें लॉगिन फॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं या कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, मैम इसमें ऑप्शन में स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ जहाँ है, हाँ कुछ भी डाल सकते हैं आप, कैरेक्टर में कुछ भी आ जाता है ना? कैरेक्टर्स इंक्लूड्स एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने वैलिडेशन नहीं लगाया है कि इट शुड बी ओनली न्यूमेरिक या इट शुड बी ओनली अल्फाबेट्स, ऐसा कोई हमने वैलिडेशन अभी नहीं लगाया है, राइट? तो आप उसमें कुछ भी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप डाल दोगे तो दैट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल, है ना? वो भी आपका क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा। तो ये सिंपल हमारा क्या था? पासवर्ड का ऑप्शन था कि कैसे पासवर्ड के लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है? इससे क्या होगा कि वो एज अ टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, जो भी चीज़ आप वहाँ पे लिखोगे दैट विल। मैम शो पासवर्ड करने का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, देखो करने के लिए तो बहुत चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब सबकी कोडिंग फिर आपको आनी भी तो चाहिए, तो अभी हम लोग अब सबके लिए, क्योंकि अभी तो हम लोग कंप्लीट जावास्क्रिप्ट तो नहीं जानते हैं, सारी चीज़ें तो नहीं जानते जिसमें हम, क्योंकि उसका मतलब व्हाटएवर पासवर्ड इज देयर दैट हैज टू बी शोन, तो देयर इज अ डिफरेंट कोड फॉर दैट, राइट? तो डालने के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हो, बट व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, ओनली दैट थिंग यू आर सपोज्ड टू पुट। अगर आप शो पासवर्ड डालते हो तो व्हाट विल द कोड ऑफ दैट शो पासवर्ड, दैट इज नॉट नोन टू यू, है ना? तो अभी उन सब चीज़ों के लिए और भी चीज़ें का इंटीग्रेशन हमें पढ़ना पड़ता है, राइट? तो आपको मैंने सिर्फ HTML से यूज़ करके एक डेवलपमेंट आपको बताया है, द लेआउट सब कैसे डिज़ाइन करके एक बेसिक्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। 100% आप इतनी चीज़ों को यूज़ करके एकदम से मार्केट डिमांड को फुलफिल एकदम से नहीं कर पाओगे कि हाँ जो एकदम एक आप प्रोफेशनल वेबसाइट, उसके लिए थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट, थोड़ा सा फोटोशॉप, थोड़ा सा PHP, SQL लाइट या किसी डेटाबेस का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम एक कंप्लीट वेबसाइट को फुल फ्लेजेड वेबसाइट का रूप दे सकते हैं, ठीक है? अब देखिए छोटा छोटा यहाँ पे मैंने एक दो लॉगिन फॉर्म सब मैंने यहाँ पे डाला है, ये इनबिल्ट लॉगिन फॉर्म है, ठीक है? आप इस टाइप का भी लॉगिन फॉर्म आप चाहो तो सेम कोड को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? जैसे लेट मी शो यू दिस लॉगिन फॉर्म, कैसा दिखेगा ये लॉगिन फॉर्म। कैन यू सी दिस लॉगिन फॉर्म? Student, can you see this login form? If you want, आप इस टाइप का भी लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, ये सिंपल लॉगिन फॉर्म है। इस टाइप का लॉगिन फॉर्म अभी तक आप जितना कोड पढ़े उससे आप इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? व्हाटएवर टिल नाउ यू हैव स्टडीड, इस टाइप के लॉगिन फॉर्म को आप चाहो तो थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर सकते हो और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और अट्रैक्टिव उसको बनाने के लिए, तो मैंने ऐसी रफ में बना दिया है। आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? और लेट मी शो यू इसका कोड कैसे ये वर्क कर रहा है। थोड़ा सा कोड इसका बड़ा, इसमें CSS ज़्यादा है क्योंकि बहुत कलर वलर ये सब चेंज है ना, थोड़ा इसमें CSS ज़्यादा होगा।
देखिए यहाँ पे इसको बोल्ड किया है मैंने, ठीक है। फिर एक और लेबल लिया है यूजर नेम के लिए, एक लिया है पासवर्ड के लिए, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड लिया है। दूसरा मैंने क्या लिया है, बटन लिया है। एक जो रिमेम्बर मी करके है वो क्या है आपका चेक बॉक्स है ना। और एक हमने लिया है ये क्या कहते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, वो एक एचरेफ है। फॉरगॉट पासवर्ड क्या है, वो आपका एक एचरेफ है ना, जिसमें हमने home.html का को लिंक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्टाइल शीट अलग से बना रखा है styles.css, क्योंकि इसकी कोड बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डालेंगे ना, तो कोड विल बी वेरी लॉन्ग। इसको मैं यहाँ से रीडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस पे भी कर सकती हूँ, क्योंकि इस नाम का पेज नहीं बना हुआ है मेरे पास। कॉन्टैक्ट अस, पहले आप इस कोड को देखो, फिर मैं आपको इसका स्टाइल शीट खोल के दिखा दूँ, क्योंकि ये दो कोड से बना हुआ है। एक तो सिंपल इसका HTML है जिसमें सिर्फ डिजाइन, दिस सिंपल HTML कंटेन्स द डिजाइन। ये जो सिंपल HTML सिर्फ क्या कंटेन कर रहा है, डिजाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग इसमें जो इफेक्ट्स आ रहा है, कलर वलर चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें कैसे आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज किया। आई हैव यूज्ड हियर द कांसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल CSS। मैंने एक स्टाइल्स और CSS बनाया है जिसके अंदर बाकी कोडिंग है, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि एक साथ सबको डाल देते तो कोड बहुत ना दिखेगी, अलग अलग डाल दिया कि लेवल पे क्या डालेगा। देखिए ये बॉडी पे क्या क्या डालेगा, लॉगिन फ्रेम है उस पे क्या क्या ऑप्शन डालेगा, H2 पे क्या क्या करेगा, कलर लेवल पे कैसा फॉन्ट साइज डालेगा, यूजर नेम जो टेक्स्ट है उस पे क्या डालेगा, पासवर्ड। तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो नाम है ना, ये नाम का हम लोग यूज कोडिंग में किए हैं। देखिए पास, आप अगर कोड देखिएगा लॉगिन फॉर्म का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका नाम डाला था ना मैंने, उसी नेम का हम लोग यहाँ पे कोड में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यू नेम। या पासवर्ड के लिए नाम क्या दे दिया, पास, और आईडी क्या है, पास। तो जो मैंने CSS में यूज किया है वो सेम आईडी और पास को यूज किया, तभी पता चलेगा ना इस नाम पे ये इफेक्ट डालेगा, लॉग पे ये इफेक्ट डालेगा, स्पैन पे ये इफेक्ट डालेगा, एक एंकर टैग है उस पर ऐसा कलर जाएगा, ग्रेइश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। मैंने आपको एक्सटर्नल CSS बताया था ना, याद आ रहा है एक्सटर्नल CSS क्या था, एनीवन? एक्सटर्नल CSS क्या था, सब भूल गए? यस निखिल, व्हाट वाज एक्सटर्नल CSS और यहाँ पे कहाँ यूज किया मैंने? हम एक्सटर्नल CSS होता है जो हमें अगर एक होल वेबसाइट पे हमें करना होता है तो उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS करते हैं। लास्ट डे हमने स्टाइल फ्रंट का यूज करा था जब पूरे एक जो वेब पेजेस में चेंज लाने थे तो उसके लिए करा था। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली, कोड में मेरे को पूरा सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मैं नहीं बता पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, अच्छा कोड विजिबल, वो कोड थोड़ा सा बड़ा है ना, तो वो स्क्रीन से चला जा रहा है। ये मैं वी यूज लिंक एलिमेंट टू लिंक एक्सटर्नल CSS, यस वी यूज लिंक एलिमेंट। हाँ, ऊपर में हम लोग हेड के अंदर ही लिंक का यूज करते हैं। देखिए हेड के अंदर ही लिंक का यूज करते हैं और लिंक में डाल देते हैं वो CSS का नाम, कि वो जो फाइल है उसको हम लोग नॉर्मल एक CSS फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं .css से। जो भी कोडिंग करना है, जिसपे आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए, कलर चेंज करना, जो भी चेंजेस करना है, आप यहाँ पे उस कलर को उस चीजों को डाल देते हो, और यहाँ पे सिर्फ आप ढांचा को डालते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, उसको लिंक कर दिए, ताकि इस पर्टिकुलर पेज पे जितने सारे चीजों का मैंने यूज किया है, ठीक है, वो सारे का इफेक्ट किससे ले लेगा, style.css से। तो आप देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल, अच्छा सा प्यारा सा एक लॉगिन फॉर्म आपको दिख रहा है। तो आप चाहो तो इस लॉगिन फॉर्म के कोड को एज इट इज अपने प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कलर अगर आपको अच्छा है, क्योंकि थोड़ा फेडेड लग रहा है, आई नो थोड़ा फेडेड लग रहा है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यूजर नेम अगर मान लीजिए, ठीक है, हम कुछ भी डाल देते हैं। आप देखिए पासवर्ड में टाइप, मैंने पासवर्ड लिया था, तो यहाँ पे जो भी हम डालेंगे वो एक डॉट के फॉर्मेट में आ रहा है ना। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे लॉगिन को मैंने कॉन्टैक्ट अस से लिंक कर दिया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, अच्छा सॉरी, इसको मैंने लिंक किया था, ठीक है, इसको मैंने लिंक कर दिया रीडायरेक्ट करके जिस पेज पे, तो वहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा लॉगिन फॉर्म, इफ यू वांट यू कैन क्रिएट दिस स्मॉल लॉगिन फॉर्म। आप इस टाइप के स्मॉल लॉगिन फॉर्म को आप क्रिएट
कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो, बिकॉज थोड़ा कलर चेंज कर देना, थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देना, थोड़ा सा डिफरेंट कर देना, ताकि हर एक स्टूडेंट का थोड़ा सा लॉगिन, अगर सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर दो तो सबका एक ही लुक एंड फील आ जाएगा। थोड़ा अलग अलग डिजाइन के आप लॉगिन फॉर्म को थोड़ा इस टेक्स्ट के अंदर भी कलर डाल देना, थोड़ा स्टार्टिंग का ये फोरग्राउंड कलर चेंज कर देना, ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना, थोड़ा सा उसको और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इट इज अ सिंपल वन। Okay, if you want you can make it more attractive. Okay, now I have two more programs to share. One is registration form, right? एक बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पहले मैं इसमें कंप्लीट सारे टैग्स एक साथ यूज है, आप देख रहे हो, all the tags are used together. Can you see this? अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसे कैसे ये बना होगा? अगर मैं इसको कोड नहीं दिखाऊं तो कोई मुझे बता सकता है क्या क्या इसमें यूज है? If I'm not going to show you the code, just anyone can tell me कि क्या क्या इसमें टैग यूज हो सकता है? Yes, ma'am. So unmute yourself. The student who is saying yes, please unmute yourself. Or please raise your hand so that I will ask you to unmute and just tell me क्या क्या इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन करने में क्या क्या कोड यूज हुआ होगा, जस्ट बताइए मुझे। यस प्रगति, अनम्यूट योरसेल्फ। बताइए। यस मैम, इनपुट टैग यूज हुआ है, फिर सेलेक्ट टैग यूज हुआ है, देन रेडियो के लिए रेडियो बटन, टाइप एज रेडियो बटन, बटन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट टैग यूज हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। एंड ईमेल और पासवर्ड के लिए इनपुट टैग यूज हुआ है, जिसमें टाइप ईमेल और पासवर्ड के लिए टाइप पासवर्ड यूज किया गया है। वेरी गुड। और सबमिट के लिए बटन यूज हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अब एक आइडिया मिल जा रहा है कि जब भी आप कोई फॉर्म को देख रहे हो तो इस फॉर्म के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। परहैप्स यू आर गेटिंग द आइडियाज, आपको समझ में आ रहा है कि इसके बैकग्राउंड में कैसे कैसे टैग्स। नो मैम, मुस्तफा मकबूल, क्या नहीं समझ में आया? नो मैम, मुस्तफा अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट हैपेंड? क्या नहीं समझ में आया बताइए। Unmute yourself and tell me. What you didn't get? No response. Okay, sorry. Stop share हो गया था। Okay, just tell me. क्या आपको नहीं समझ में आया? Mustafa, are you there? Simply saying big no ma'am. कुछ तो बताइए क्या नहीं समझ में आया? मैंने बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इस फॉर्म को देख के क्या आप गेस कर पा रहे हो आप लोग किसके बैकग्राउंड में किस टाइप के टैग यूज हुए हैं? तो प्रगति आंसर्ड वेरी वेल, राइट, दैट वी हैव यूज इनपुट टाइप, लेबल यूज हुआ है, टाइप एज अ टेक्स्ट यूज हुआ है, लिस्ट यूज हुआ है, रेडियो बटन यूज हुआ है। क्योंकि जब तक आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि आपको पहले तो इमेज बनाना पड़ेगा कि हमें ऐसा फॉर्म बनाना है, तो जब आपको इमेज बन जाएगा, पहले आप पेपर में अगर ड्रॉ कर लिए फॉर्म, तो आपका आइडिया होना चाहिए कि ये फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए कौन कौन सा टैग हमारे पास है, राइट। हमारे पास जो भी ये सारे टैग्स है उसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू द कोड, बहुत सिंपल कोड है। अब लोग कहते हैं मैम तो बहुत सिंपल था, क्योंकि अभी तक हम लोग सारे कोड को सेपरेटली पढ़े हो, अब यहाँ पे हम लोग सारे कोड को एक साथ क्या कर दिए, एक साथ कर दिया। वैसे देखिए एकदम सिंपल है। देखिए कोड थोड़ा बड़ा जरूर है, but see things are very simple, isn't it? अब देखो सारे कोड को उसी तरीके से यूज हुआ है ना। देखो कुछ भी ऐसा कोई डाउट कोई चीज तो आप बताओ कि नहीं मैम ये बात नहीं समझ, और इतना कर दोगे तो आपका वो सुंदर सा ब्यूटीफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप जिसमें मैंने कोई CSS यूज नहीं किया, अभी मैंने कोई डिजाइन नहीं डाला है, विदाउट CSS ये सिंपल बना हुआ है।
तो अगर आपको CSS बहुत डिफिकल्ट लगेगा तो आप सिंपल वेब पेज भी बना सकते हो विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। देखो जिससे वो सारे बेसिक टैग्स का यूज तो हो ही गया ना। आप देखो, है ना। देखो एक बार फिर से, थोड़ा कोड जरूर बड़ा हुआ है, इट हैज टेकन मोर देन 64 लाइंस ऑफ कोड, तो थोड़ा सा आपको देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है। इसमें वो सारे टैग्स को एक साथ, क्योंकि जब एक फॉर्म बनता है तो उसमें सब ऑप्शंस आएंगे ना, है ना। तो आप एटलीस्ट एक लॉगिन फॉर्म डालोगे अपने में, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालोगे, कॉन्टैक्ट अस एक डालोगे, ठीक है। और बाकी तो सिंपल आपके स्टैटिक वेब पेजेस होंगे जिसमें मार्क्यू वार्क्यू लगा के आप इंफॉर्मेशन को शेयर करो। उसके अलावा ये सारे टैग्स को आप डालोगे, 2-3 फॉर्म आपके GUI फॉर्म भी उसमें होने चाहिए, ठीक है। सॉरी मैम, नाउ अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके बट सी दिस इज नॉट द वे। एक बार नो मैम इतना बड़ा सा लिख के उसके बोले जा रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, तो फील होता है कि भाई क्या एक साथ बड़ा सा नो मैम एक फॉर्म डाल के चले गए कि नो मैम, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ ट्रबल कि क्या ऐसा हुआ भाई, सीधे बड़ा सा नो मैम। एक भी बात होता है कि मैम ये ऑप्शन नहीं समझ, सीधे नो मैम। ओके एनीवेज, चलिए एक लास्ट प्रोग्राम है, थोड़ा सा ये आपको CSS इसमें मैंने डाल दिया है। ओके अगर थोड़ा फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, मैंने दोनों ऑप्शन दिया, सिंपल बनाना है विदाउट CSS आप ऐसा बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा CSS डालना है जिससे आपके फॉर्म का लुक एंड फील थोड़ा अच्छा हो जाए, जैसे देखिए ये फॉर्म है, इसका लुक एंड फील थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो जहाँ पे लुक एंड फील अच्छा लगेगा तो वहाँ पे CSS आपको डालना ही पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है। ओके मैम सॉरी, माइक नॉट वर्किंग, राइट। तो ये जो आपका फॉर्म है दैट इज विद CSS। इसमें मैंने देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में पिंकिश आपको दिख रहा है, फिर पिंकिश एक बैकग्राउंड पिंक डाला, उसके ऊपर से ब्लू डाला है, उसके ऊपर से इन चीजों को डिजाइन किया है। रजिस्ट्रेशन का स्पेलिंग गलती हो गया है ना, कोई बात नहीं, उसको चेंज कर देते। देखो ये थोड़ा आपका CSS का यूज है, इसका मतलब इसके बैकग्राउंड में भी CSS होगा, ठीक है। देखो इसको CSS को मैंने इसी वेब पेज में डाल दिया, इसको अलग से एक्सटर्नल नहीं बनाया है। लेट मी चेंज द स्पेलिंग, REGIST REGISTRATI, ठीक है। अब देखो सेम चीज ये भी है, सेम वही कोड को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बस स्टार्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा CSS लगा दिया है। तो थोड़ा सा आप CSS लगा दोगे तो आपका लुक एंड फील दोनों में देखो कितना चेंजेस आ गया दोनों रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो देयर आर वेरी मच डिफरेंस बिटवीन दीस टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वन इज विद CS एंड वन इज विदाउट CSS, राइट। तो आप फ्री हो, आप अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है कि नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं, तो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल सकते हो, सिंपल भी ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप CSS का यूज करके थोड़ा देखो इसका थोड़ा लुक एंड फील थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, राइट। तो एटलीस्ट माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आप अपने वेब पेज का जो भी, अब तो आप उसको एक फाइनल टच दोगे, ठीक है। आज तक का जो भी कंटेंट है आप उसको उसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है। कल मैं एक क्विक ओवरव्यू आपको दूंगी, पूरे एक टेम्पलेट पे वर्क करके मैं बताऊंगी कैसे थोड़े तुरंत से हम लोग एक दो वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, बस उसमें हम लोग को एडिटिंग करना होता है, जहां मन किया हम लोग उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ओके। तो मैं वो चीज़ आपको कल बताऊंगी, इससे आपको क्विक में दिखेगा कितने जल्दी इसमें आप एक वेबसाइट पे वर्क कर सकते हो। बट यहाँ तक मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक जो भी चीज़ मैंने बताया है आप उसको एक बार, इसका मैंने चेंज किया बट प्लीज शेयर द लेंदी कोड एज टेक्स्ट फाइल, इट वोंट। तो दिया तो मैंने, ये तो ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, कल ही मैंने सारा शेयर कर दिया है। आप देखो आपको कल मैंने एक PDF शेयर किया, टेक्स्ट फाइल, PPT में नहीं डाला है, वो मैंने आपको एक टेक्स्ट फाइल कल शेयर किया है, हैव यू सीन दैट? उसमें मैंने सारा जितना भी GUI का कोड डाला है ना, दैट इज देयर। सारे GUI का कोड आपके ऑलरेडी उसमें डाले हुए, एक बार आप उसको देखिएगा, ठीक है। वैसे फिर भी मैं इसका पूरा टेक्स्ट फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगी आज, जो भी मैंने ये जो दो लंबा कोड है जिसको PPT में मैं खुद भी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे PPT खुलेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी कल जो मैंने शेयर किया ग्रुप में उसमें ऑलरेडी मैंने कुछ कंटेंट डाल भी दिया था, फॉर्म कोडिंग करके forms.pdf डाला हुआ है उस ग्रुप में, एक बार आप उसको देखिए, ठीक है। So my dear participant, that's all for today। एक कंप्लीट आपको एक वेब का एक आइडिया मिल गया, ठीक है।
अब आप इसको जितने तरीके से आप इसको चाहो तो यू कैन यूज इट इन योर वेबसाइट्स, राइट, with more attractive images, with more attractive backgrounds, colors and all. आप इस पे और भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. Code is there with you, simply you have to make changes with the code, right? So I wish कि आज जहाँ तक आज की चीज़ों को आपने पढ़ा, you must include all these things in your project as well. Okay, ma'am, please open group today at 7:30 p.m. Okay, sure.